Today's topic is demand forecasting. The demand forecasting in our life is full of uncertainties, and so is the business also. So changes are ever seen in the behavior of the consumer depending on his taste and preferences over time. That means, however, the behavior of the consumers are changes. These are the uncertainties for the seller. So for that purpose, we need to check the demand of the customer, their preferences, their taste, because they are over changing, they are the changing over the time. So for that purpose, we need to understand the exact demand of the customers, the exact requirements of our customers. In short, a firm regarding the details of his product depends on the demand. Firms want to calculate its demand. So for that purpose, the firms has to based upon the demand forecasting. In this topic, we will study about various methods to calculate those predictions and objectives behind them. So what is demand forecasting? Demand forecasting, if we called the forecast is the any guess or anticipation or a prediction about any event which is likely to happen in the future. For an example, what my need or the forecast about the job, I forecast what forecast I am doing with my income. If I say in 2021 my income would be raised by 10%, then I will purchase this particular commodity or the services. So the demand of the particular product and services also depends upon the forecasting of the salary increment. So that is a demand forecasting. Demand forecasting means nothing, that is the only prediction or estimating the future demand for a firm's product or the services. Similarly, we're talking about the firms, they are predicting their demands, their products demand. Important aid in effective and efficient planning. It is the backbone of any business. Now, objectives of demand forecasting, there are two types of objectives, short term as well as the long term. If we're talking about the short term, that means this is for the certain time of period. First one is the formulation of production planning. What we have, the problem exactly in it. If we go for the production process, if we are not, I have to check the production should not be overproduction और दी अंडर प्रोडक्शन. अगर ओवर प्रोडक्शन कर दिया है तो मेरे मेंटेनेंस चार्जेस लगेंगे, अंडर प्रोडक्शन कर दिया है तो मेरी डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है. सो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू गो फॉर दी फोरकास्टिंग. रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर ऑल्सो, बिकॉज अगर मेरे पास प्रोडक्शन ज़्यादा करना है या कम करना है तो इसके अकॉर्डिंगली मुझे लेबर को भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. और लेबर में भी हमें ये देखना है, वी हैव टू चेक लाइक अनस्किल्ड लेबर चाहिए हमें या स्किल्ड लेबर चाहिए या सेमी स्किल्ड लेबर से काम चलेगा. एंड थर्ड वन इज रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल इन एडवांस. लाइक अगर मेरे पास प्रोडक्शन मुझे पता है कि मेरी फ्यूचर में डिमांड इतनी आएगी तो अकॉर्डिंगली मैं अपने रॉ मटेरियल भी ऑर्डर करूँगी. अरेंजमेंट ऑफ द फंड्स ऑल्सो. अब मेरे को फंड्स की भी रिक्वायरमेंट होगी कि लाइक मुझे अरेंज कहाँ से करने हैं फंड्स, मुझे कहीं से लोन लेना है या कहीं और रिक्वायरमेंट्स है, कुछ और मेरे पास सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं. तो ये सब सारी चीज़ें हमें डिमांड फोरकास्टिंग के थ्रू पता चलती है. सिमिलरली द प्राइस पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इट enables the management to evolve a suitable price strategy. Like what pricing, because pricing is the main factor among the four elements of the marketing mix, because price is only the factor who generates the revenue for the organization, so it plays an important role. So for that purpose we have to be very careful about our pricing policy. If the period of forecasting is more than 1 year, then it is termed as the long term forecasting. So long term forecasting objectives are, first, labor requirements. That means we have to arrange the skilled labor. ऐसा तो नहीं है कि मैंने 6 months के लिए या 8 months के लिए ही लेबर रखी हो, मुझे लेबर चाहिए लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, सो दैट देयर वुड बी अ
intimacy between the organization and the employee also, and they can understand the work procedure of the organization. Arrangement of the funds, अब हमने लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स भी करने हैं ऑन दी रीजनेबल कंडीशंस ऑल्सो, टू डिसाइड अबाउट द एक्सपेंशन, एक्सपेंड करना है अगर मुझे मेरा प्लांट या फॉर्म, तो उसके लिए भी मैं लॉन्ग टर्म डिसीजन पर्पस लूँगी. नीड एंड द सिग्निफिकेंस, it is necessary to forecast demand in business because first point is effective planning. It provides scientific and reliable basis for anticipating the future operations, because with the help of the demand forecasting we are able to do the effective planning and we can anticipate the future operations also. Next point is reduction of uncertainty. If we go for the demand forecasting, we can be able to reduce the uncertainty with respect to the cost, the production, the sales and the profit and so on. That means मैं एक टाइम तक अपनी जो कॉस्ट में अनसर्टेनिटी है उसे रिड्यूस कर सकती हूँ. Investment decisions, investments are made keeping in mind the returns, and returns depend on the market demand, कि मेरे रिटर्न्स कितने आ रहे हैं और मार्केट में डिमांड कितनी है, इसके अकॉर्डिंगली मेरे पास रिटर्न्स आएंगे. रिटर्न्स आएंगे तो मैं कहीं और भी उसे इन्वेस्ट कर सकती हूँ, लाइक एक्सपेंशन में, और लाइक कि मुझे अब कोई न्यू बिजनेस स्टार्टअप कर लेना है, कहाँ कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ. तो दैट इज़ व्हाट द इन्वेस्टमेंट डिसीजन. फोर्थ पॉइंट इज रिसोर्स एलोकेशन. अब जब मेरे पास प्रॉपर फोरकास्टिंग है, प्रॉपर डिमांड है, प्रॉपर मैंने अनसर्टेनिटी को भी रिड्यूस कर लिया है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले लिए, तो मैं रिसोर्स को भी एलोकेट करूँगी अब कि मेरे कौन कौन से रिसोर्सेज कहाँ कहाँ जाएंगे. Pricing decisions, as I told you that this is the crucial factor while deciding the pricing because of the two concepts like over optimistic और over pessimistic. Over optimistic आपने हमेशा सुना होगा कि पॉजिटिव वर्ड है, तो ओवर ऑप्टिमिस्टिक दैट मीन्स कि कभी कभी हम लोग ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं. लाइक हम ये सोचते हैं कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है और इसकी प्राइसेस अगर मैं हाई भी रखूँगी तो मेरा प्रोडक्ट सेल आउट हो जाएगा. तो ये क्या हो गया, ये ओवर ऑप्टिमिस्टिक है, जिसको हम सेकेंड लैंग्वेज में बोल सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, कि लाइक मैंने ओवर ऑप्टिमिस्टिक में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्राइसेस बहुत ज़्यादा कर दी हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स ने उसे नहीं परचेज किया और मेरी जो सेल थी वो लॉस्ट सेल्स हो गई हैं. अब इसको हम बोलेंगे ओवर ऑप्टिमिस्टिक. दैट मीन्स मैंने प्राइसेस ज़्यादा रख दिए हैं और मेरी सेल्स अब लॉस्ट हो चुकी हैं. ओवर पेसिमिस्टिक भी नहीं होना है, दैट मीन्स ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं सोचना है, बिकॉज if we think that we keep the prices low so that we can attract the customers and increase the sales also, but sometimes customer presume, or we can say they assume that low price product is the low quality product also. For an example, like जो टाटा नैनो कार के साथ हुआ था, लो प्राइस कार थी, लोगों ने सोचा कि ये लो क्वालिटी की है और गरीब लोगों की कार है, तो इससे हम लोग ओवर पेसिमिस्टिक, इसे बोलते हैं ओवर पेसिमिस्टिक. दैट मीन्स हमने कुछ ज़्यादा ही उसकी प्राइसेस कम कर दी हैं क्योंकि वी वांट टू जनरेट द डिमांड. So there are various factors through which we have to decide the pricing. Next point is competitive strategy. Competitive strategy that means कि हमें influence करना है अपने decisions को with regarding to the competitors strategy. और इसके अंदर हम नॉन प्राइसिंग फैक्टर्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, लाइक डेमोग्राफिक वेरिएबल्स है, आपका सेगमेंटेशन है, ये सब मेरे नॉन प्राइस फैक्टर्स हैं. तो हमें कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली अपनी डिमांड फोरकास्टिंग करनी है. नेक्स्ट मैनेजीरियल कंट्रोल. मैनेजीरियल कंट्रोल तो हमें करना है कि हम किन किन एरियाज़ में लैक कर रहे हैं और किस एरिया में हमें अभी कंट्रोल करने की ज़रूरत है. Next are the steps of the demand forecasting. So first step is determine purpose of forecast, कि हम लोग ये चेक करेंगे किस लिए हम फोरकास्ट कर रहे हैं. We want to generate the revenue, we want to generate the demand. हम किस लिए कर रहे हैं फोरकास्टिंग. Determine the purpose of forecasting. किस पर्पस के लिए, लाइक मैं 2020 के लिए फोरकास्टिंग कर रही हूँ, 2021 के लिए कर रही हूँ, इट डिपेंड्स अपॉन द ग्राफ. सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट के लिए कर रही हूँ.
कौन सी टेक्निक में लगाऊंगी, लाइक दे आर द वेरियस टेक्निक्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, वो हम नेक्स्ट अभी आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे. गैदर एंड एनालाइज द डेटा. नेक्स्ट इज एस्टिमेटिंग द फ्यूचर इवेंट्स, कि फ्यूचर में क्या क्या और इवेंट्स हमें करने हैं. नेक्स्ट, सो वी नो अबाउट इट्स ऑल, but now let's analyze the methods of demand forecasting. Now, what are the methods of demand forecasting? There are the two types of the methods, qualitative as well as the quantitative. If we are talking about the qualitative techniques, they mainly employ human judgment to predict future events. Like हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं उनसे जजमेंट ले रहे हैं कि व्हाट दे थिंक अबाउट इट, आर दे सेटिस्फाइड और नॉट, आर दे assume that this particular product or services can be improved, in what parameters do you want to that particular product or services can be improved. So they are also called the macroeconomic method. This involves the prediction of economic aggregates such as unemployment, GDP growth, short term interest rate, etc. इसी के accordingly हम लोग predict भी कर सकते हैं. Now this involves expert opinion methods, survey methods which include complete enumeration survey, sample survey, sales force opinion and use survey. So we are talking about the expert opinion method. This technique of forecasting demand seeks the views of experts on the likely level of the demand in the future. They have a rich experience in the behavior of demand. That means in the expert opinion method, there are the panel of the experts. यहाँ पे panel होता है experts का. They sit together and discuss about the particular matter. और ये जो panel होता है इसे हम बोलते हैं Delphi method. जो पैनल ओपिनियन जो हमारे पास आता है, स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ पैनल ओपिनियन आता है जैसे नोन एज द डेल्फी मेथड, जिसके अंदर सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए होते हैं और ये अपने ओपिनियन शेयर करते हैं. दैट इज व्हाट द एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड. कंज्यूमर्स, तो मेरे कंज्यूमर्स कंप्लीट एनुमरेशन सर्वे में, जबकि अगर उसमें से मैंने 40 सैंपल साइज ले लिया है, ठीक है, तो मेरे 40 कंज्यूमर्स हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे बाकी सारे कंज्यूमर्स को, तो वो मेरा कहलाएगा कंज्यूमर सैंपल सर्वे. जो कि वो जो सैंपल है, द पर्टिकुलर सैंपल रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन. सो ये मैथड क्या होता है, थोड़ा सा सिंपल और चीपर हो जाता है, बिकॉज हमें सबके पास से जाना पड़ता है, तो कॉस्ट इनकर्ड नहीं होती है, और रिजल्ट्स जो आते हैं वो भी बहुत जल्दी आते हैं और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. Third is सेल्स फोर्स ओपिनियन सर्वे. सेल्स फोर्स ओपिनियन सर्वे एज द नेम इंडिकेट्स, हम इसके अंदर सेल्स पर्सन का ओपिनियन लेते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी या रीजन को सर्व कर रहे होते हैं. हम उनसे ओपिनियन लेते हैं कि जो भी हमारे होलसेलर्स, रिटेलर्स, कंज्यूमर्स को दे रहे हैं, हम उनसे लेते हैं पूरा कि वो क्या सोचते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि इतनी सेल्स, हम सेल्स पर्सन से पूछते हैं कितनी सेल्स हो सकती है, क्या आप सोच रहे हैं कि किस पॉइंट पर हम लोग लैग कर रहे हैं. ठीक है, तो हमें एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है हमारे सेल्समैन से, एंड वी कैन बी एबल टू फोरकास्ट द सेल्स ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स ऑल्सो. नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स एंड यूज सर्वे. कंज्यूमर्स एंड यूज सर्वे means the products that are made during a manufacturing process but that are also used in the production of other goods. That means consumer and use survey हम लोग mainly intermediary goods के लिए करते हैं, और intermediary goods वो goods होते हैं जो कि जिसे हम बोलते हैं semi finished goods or the raw materials and all, and they can also help to produce the next that is used in production of the other goods also. जैसे कि लाइक एन एग्जाम्पल जो शुगर है, वुड है, स्टील है, दे आर द गुड्स ऑल्सो, दे आर द फिनिश गुड्स ऑल्सो, बट समटाइम्स दिस फिनिश गुड्स कैन बी द रॉ मटीरियल इनपुट्स फॉर द another goods also. इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, लाइक मिल्क इज अ कमोडिटी विच कैन बी यूज एज एन इंटरमीडिएटरी गुड्स. जो मिल्क है उसे हम इंटरमीडिएटरी गुड्स कहते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आइसक्रीम, पनीर एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स. तो कंज्यूमर एंड यूज सर्वे हम करते हैं मेनली इंटरमीडिएटरी गुड्स के लिए,
के लिए हम ये देखें कि इसकी डिमांड और कितनी आने वाली है आने वाले टाइम में, लाइक आइसक्रीम की डिमांड समर्स में. So now that finishes the qualitative methods. Now let's look at the quantitative methods. Now quantitative techniques, this method involves the various statistical tools to data for predicting the future events. These methods are also called the microeconomic. जो हमारे क्वालिटेटिव टेक्निक्स थी वो कहला रही थी मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जो क्वांटिटेटिव हैं वो टेक्निक्स कहलाती हैं हमारी माइक्रो इकोनॉमिक मेथड्स. So it involves the prediction of activity of particular firms, branded products, commodities, markets and the industries. ये हम प्रिडिक्शन में लेते हैं पर्टिकुलर फर्म्स के लिए, किसी कमोडिटी के लिए, किसी मार्केट के लिए, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए भी, एंड दे आर much more reliable than the qualitative. Projection. So trend projection, as the name indicates कि हम ट्रेंड देख रहे हैं. ट्रेंड दैट मीन्स कि हम हिस्टोरिकल डेटा देख रहे हैं. क्रॉस सेक्शनल डेटा दैट मीन्स कि हमें डिफरेंट इंडिविजुअल्स और ग्रुप से एक ही टाइम पर जो डेटा मिला है, इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल डेटा. तो हम इसके अंदर हिस्टोरिकल डेटा देख रहे हैं और जो पर्टिकुलर डेटा हमारे पास आया है क्रॉस सेक्शनल डेटा, उसके थ्रू हम डिमांड को एस्टिमेट्स कर रहे हैं. दिस टेक्निक्स एज्यूम दैट whatever has been the pattern of demand in the past that will continue to hold good in the future as well. That means जो भी पैटर्न रहा होगा हम ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में भी यही पैटर्न चलेगा. That is trend projection method. In this method, data are arranged chronologically, which yields a time series. Chronological order में मेरा डेटा arranged होता है, और इसके अंदर हम लोग पास्ट पैटर्न देखते हैं, और इसके अंदर भी दो मेथड्स है, ग्राफिकल मेथड और द लीस्ट मेथड. अगर मैं ग्राफिकल मेथड की बात करूँ तो आप लोगों ने सुना होगा लाइन ऑफ बेस्ट फिट. लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकालते हैं हम लोग ट्रेंड इक्वेशंस में, लाइक ऐसी लाइन जो कि हमारे जो पूरे डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है, और दोनों पार्ट्स को इक्वल डिवाइड करती है. इट इज नोन एज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट. ये देखिए इस डायग्राम में बता रखा है, जितने भी मेरे जो अप्स एंड डाउन हुए हैं उसको हमने एक सिंपल लाइन में जो कि दोनों को एक इक्वल पार्ट में कर लिया. दैट मीन्स हमारे लिए जो ट्रेंड लाइन है, बेस्ट फिट लाइन है, हमें इसी को ही अकॉर्डिंगली चलना है आगे. Now least square method, it is a mathematical procedure for fitting a line to a set of observed data points in a manner that the sum of the square differences between the calculated and observed value is minimized. अब least square method में हम क्या करते हैं, एक तो calculated value निकालते हैं और एक observed value निकालते हैं, और इन दोनों values को हमें इनके जो sum का जो difference होता है इसे minimize करना होता है. The linear trend is the most widely used mode of time series analysis. These values हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, एक्स वाई चाहिए, समीशन वाई चाहिए, समीशन एक्स चाहिए. ये देखिए क्योंकि 12 था मेरे पास, 2003 से मेरा ट्रेंड स्टार्ट है, तो हमने कर दिया 12 to 2, तो मेरा ये डिफरेंस निकल गया. Now barometric method uses business barometrics or indicators of various economic phenomena. जो barometers होते हैं उन्हें हम indicators कहते हैं, ठीक है. ये एक economic phenomena को बताते हैं. इसको हम easily समझ सकते हैं एक example के थ्रू. तो मैं आपको एक next example बता रही हूँ. The Bhuj earthquake in January 2001 led to a massive destruction of property and buildings in Gujarat. This necessitated constructions of building. The construction was followed by a spurt in demand for cement, fans, tube lights, etc. Thus one can say the construction of buildings leads to the demand for the cement. क्योंकि अगर मुझे buildings बनानी है तो मुझे cement की demand चाहिए, और इस केस में कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज द लीडिंग इंडिकेटर और द बैरोमीटर. अब ये जो बिल्डिंग्स बनाना जो है सीमेंट की डिमांड को लेके एक लीडिंग इंडिकेटर है कि लाइक अब अगर मेरी बिल्डिंग्स बनेंगी तो दैट मीन्स वी नीड सीमेंट. तो ये इंडिकेटर है, एक बैरोमेट्रिक बोलते हैं. अब इस इंडिकेटर्स के थ्रू मैं एम्प्लॉयमेंट रेट, होलसेल प्राइसेस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स, ये सारे मेरे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं. अब इकोनॉमिक मेथड्स क्या क्या होते हैं. इकोनॉमिक मेथड में हम लोग मैथमेटिकल
ये इकोनॉमिक थ्योरी है और स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग दो मेथड्स पढ़ते हैं इकोनॉमिक मेथड्स में, रिग्रेशन और साइमल्टेनियस इक्वेशन। सो अगर हम रिग्रेशन की बात करते हैं, रिग्रेशन में हम लोग क्या देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। एक वेरिएबल तो मेरा डिपेंडेंट है बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बहुत सारे हैं। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, देयर इज ओनली वन independent variable. If the data is a time series, the independent variable is the time period. अगर डेटा मेरा टाइम सीरीज में लाइक बहुत सारी हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, टाइम पीरियड। इनके बीच में टाइम पीरियड कितना है, द डिपेंडेंट वेरिएबल इज व्हाटएवर वी विश टू फोरकास्ट। So for regression equation the model is y is equals to a plus bx. y क्या है मेरे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि x क्या है मेरा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। a जो है वो y एक्सिस इंटरसेप्ट है और b क्या है, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन। इसमें अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो a और b पॉइंट्स निकालने होते हैं हमें। तो a का जो फॉर्मूला है समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय समीशन ऑफ y माइनस समीशन x multiplied by summation xy upon n summation x square minus summation x का whole square. Similarly for the b, n summation xy minus summation of x multiplied by summation of y and then divided by n summation x square minus summation x का whole square. ये formulas हम steps में पहले ही already पढ़ चुके हैं. Now तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, अ डेटा ऑफ अ फर्म रिलेटिंग टू सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट इज गिवन बिलो। इफ द मैनेजर डिसाइड्स टू स्पेंड ₹30 मिल इन द ईयर 2005, व्हाट विल बी द प्रिडिक्शन फॉर द सेल्स। अब ईयर्स हमें गिवन है 4 तक, 95 to 2004, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स भी हमें गिवन है, सेल्स हमें गिवन है। अब हम निकाल सकते हैं, ये ईयर के बिना, डेट मीन्स एन मेरे पास 10 है। जो मेरे पास एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है उसे हमने एक्स ले लिया है और जो सेल्स है उसे हमने वाई ले लिया है। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर निकाला, एक्स वाई निकाला, इन सबका समीशन वी विल पुट इनटू द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. While calculating the value, we have find the A is equals to 34.54 and B is equals to 2.15. So therefore, as per the formula, y is equals to A plus BX. So y is equals to 34.54 plus 2.15 into x. So x would be 30. Y is equals to, अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, then y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मेरे पास क्या आ गया है, 99,000। the endogenous variable and exogenous variables. Yes, endogenous variables. Endogenous variables are the variables is one that is influenced by other factor in the system. That means endogenous variables वो होते हैं जो कि किसी और फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जबकि जो एक्सोजीनियस वेरिएबल्स होते हैं, these are the variables that is not affected by the other variables in the system. कि वो किसी और सिस्टम से इफेक्ट नहीं होते हैं। लाइक जो हमारी फॉर एन एग्जांपल फार्मिंग जो है वो किसी और चीज से इफेक्टेड नहीं होती, हम फार्मिंग कर सकते हैं इजीली। बट इंडोजीनियस वेरिएबल्स होते हैं जो कि किसी और चीज से अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट आर दी लिमिटेशंस। The forecasting are the subject to degree of error and they can never be made with 100% accuracy. यहाँ पर हमारे एरर भी हो सकती है, 100% एक्यूरेसी हम नहीं बोलते हैं। Also quantitative techniques are based on certain assumptions and so conclusions are not better. क्योंकि क्वांटिटेटिव में ऑल्दो हम लोग जो चीज़ें हैं वो कैलकुलेटिव वे में लेकर आते हैं, बट कुछ assumptions भी हैं हमारी। Managers often neglect to examine whether the forecasts are supported by the reliable information. हम ये भी नहीं देख रहे हैं कि जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है क्या वो reliable information है या नहीं है। So that's all for today. Thank you.